the concepts, the question the craftsmen faced was how to visually show these deities to the masses in a consistent manner. Prior to the Gupta age, this was a problem. Lakshmi was shown also sometimes standing, rarely sitting, but if she was sitting, she was shown on a throne. How was the body of Lakshmi to be depicted? Was she supposed to be holding something in her hand? It was during this Gupta age when all the iconography started to get codified. Gupta the first's reign to the start of the reign of the next king, the second son, Chandragupta II. It was Samudragupta who, as is written in his Prashishti, the Allahabad pillar inscription, established what he referred to as the long forgotten Vedic traditions. All of our history books list this. But what does it really mean? Where is the proof? How do we confirm what that line in the inscription actually means? This is where my research comes in. In this book, I was able to document for the very first time that the iconography of Goddess Lakshmi was codified during the early part of the Gupta dynasty. And it is fascinating to see that as it slowly is seen evolving on the gold coins of Samudragupta the first around 340 AD. When studying his gold coins, which were issued early in his reign, I noticed that the goddess was not shown as Lakshmi. She was sometimes shown seated on a throne, because they had adapted the concept of God, this design of the goddess, from the Kushana goddess Ardaksho. It was during the mid part of his reign that we start seeing very slowly on a few coin designs where the craftsmen start to add a few lotus petals under her feet, right? And then more and more, and eventually she's shown seated on a full lotus with petals holding a lotus flower. So this all happened during the early part of Samudragupta's reign. Scholars have been studying the Gupta coins for over 150 years, but I was able to finally show this evolution of Lakshmi and bring it to the forefront. Then I wondered, what else could we find if instead of looking at each coin individually, I tried to look for patterns? And suddenly a new world of hidden messages and meanings opened up. This was very exciting. The coin on the cover of the book is the Tiger Slayer type, right? So this Tiger Slayer type coin, in this coin, it is the first coins issued by Samudragupta when he was just a Raja. But in this coin, it does not say Maharaja Dhiraja, it just says Raja Samudragupta. And in the back of this coin, well, the image is in the front there, but in the gallery, but you'll see in the back of this coin, we actually don't have a goddess Lakshmi seated. We actually see goddess Ganga standing on a makar, which then confirms to us that this was issued during the time when he was first starting to conquer the Gangatic plain and expand his empire. While that was 1700 years back, where we saw this coin which shows Samudragupta shooting a tiger, and the back it says Vyagra Prakrama, valiant as a tiger, the brave warrior who's victorious over his enemies. Today, I would like to just stop for a minute and recognize somebody that's here in the audience. Ravi, where are you? Could you please stand up? Ravi's back there. This is Major General Ravinder Singh, a Kargil war hero, awarded the Sena Medal. Why do let's please honor him. He captured the Tiger Hill back. He was shot many times and awarded for his gallantry the Sena Medal. Major General Ravinder Singh, my classmate from 7th class. Thank you. Thank you, sir. Valiant as a tiger. It is in our history, right? As researchers and scholars, we tend to get bogged down
in minute details. I did so too for a long time, till I was able to understand that in order to solve the mystery of ancient India, context was important. A macro view of the entire landscape also was important. And digging deeper, one had to look for clues hidden in the subtle messages in Brahmi inscriptions to try to find patterns within the data. A major part of these coins come from different museums from around the world, as well as private collections. Now, these museums are not always eager to open up the collections. So it takes many visits, many years of pleading with directors of the museums and private collectors to get these coins opened up, to be photographed, to be weighed, to be measured. So this is a long process. It took decades of dedicated work to get this data together. Studying these coins, it was very clear that the Gupta kings were actually telling a story. Hidden messages, propaganda, celebrating marriage alliances, patronage of arts, conquests, coronations, and even victories in battle. Sometimes you can stare at 100 coins for years and not know what to make of some of these messages. And then just a single new coin shows up, a solitary coin, and it turns out to be the missing jigsaw puzzle piece, and that ties that entire 100 coins together. Welcome and for setting the tone for today's event. Now, I invite the author himself, Dr. Sanjeev Kumar, to introduce his book, Treasures of the Gupta Empire. Scholars in each of their own fields. I'm truly humbled. Thank you all for being here. Thank you, Ramesh ji, for Professor Gaur for helping us launch this book here. When Joshi ji and Mani ji were in Chicago last year, they asked me to talk. Thank you for coming. So happy. Prashant ji, thank you. And most of all, I am just thrilled that my hero, Professor Tapia, is here. I won't tell his age, but he's older than probably everybody here. He came here just with Mrs. Tapia, just for this. And he came a few days early so he could be here with his son and daughter-in-law. And he came, when I told him the book was getting launched in Delhi, he insisted that he will be there, no questions about it. Thank you, Joshi ji. I was drawn to these coins simply because of the artistic features of these coins. I did not understand how to read Brahmi 40 years back. I didn't understand what these figures meant. But I thought, when I was growing up in India, I did not see these pictures in my book. This is amazing. I didn't even know we had this. So this is what led me to these coins. Why is this book important? The book Treasures of Gupta Empire, this is the second book in the series. Why is this book important? Because the research, 40 decades of research, 4 decades of research, 40 years, this book changes India's history as it's being written today. Even today, the information in there forces our history books to be rewritten because there is so many inaccuracies about the greatest Hindu dynasty of that time, and we don't have so many facts that are in this book that should be part of our regular history books. This age of the Gupta age is romanticized and called the Golden Age, right? It was the Golden Age because there were amazing discoveries in science, mathematics, philosophy, astronomy, and science, and they were all taking place around that time. Today, with my research, I'm unlocking additional mysteries that have stayed hidden over 1,600 years away. Now we have a short movie, and could you roll the movie, please? तो ये किताब जो है ये 40 साल की रिसर्च पब्लिश हुई है इस किताब में, और ये किताब भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भारत में हमारी हिस्ट्री बुक्स में जो लिखा हुआ है वो काफी पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ हिस्ट्री बुक्स भरी हुई हैं, लेकिन ये जो न्यू रिसर्च है इससे हमने जो नई नई इंफॉर्मेशन नई नई डिस्कवरीज करी हैं वो इस किताब में पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम करी हैं, और उससे हमें ये पता लगता है कि जो आजकल की हिस्ट्री बुक्स हैं उसमें बहुत गैप्स थे, और ये गैप्स इन आज नई रिसर्च से वी आर एबल टू फिल देम।
अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ खड़े हैं और ये जो किताब, ये जो कॉइन है, इसको हम अपराधिका कॉइन कहते हैं कुमार गुप्त का। लेकिन ये लोगों को समझ नहीं आया कि दिस इज एक्चुअली ए कॉरोनेशन क्वीन सीन, मतलब ये ही इज बीइंग क्राउन्ड द किंग एंड इट्स फादर एंड मदर, माता पिता इसको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ये कुमार गुप्ता का कॉरोनेशन सीन अपराधिका कॉइन है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कॉइन आपको दिखलाते हैं यहाँ। ये जो कॉइन है, ये हमारे भारतवर्ष की हिस्ट्री को चेंज कर देता है। ये पहली टाइम पब्लिश हुआ है, इधर ब्राह्मी में लिखा हुआ है गुप्ता डेट में, गुप्ता 149। अब इसमें एडवांटेज ये क्या है कि स्कंद गुप्ता का हमारे बुक्स में लिखा है कि थोड़े साल तक ही वाज रूलिंग, हाँ, बट इससे हमें पता लगता है ये 468 एडी तक ही वाज स्टिल रूलिंग। आपको मैं एक चीज और दिखलाता हूं, ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट नोन जॉइंट रॉयल सील, मतलब ये क्रिस्टल की सील है। एक हुना किंग था तोरमान ने 500 एडी के करीब हमला करा और सेंट्रल इंडिया को कैप्चर कर लिया। उसको ही वाज डिफीटेड बाय प्रकाश धर्मन। अब उसके बाद में वी हैव इंफॉर्मेशन दैट ही डाइड इन काशी, बट वो काशी में मरना और डिफीट के बाद में उसका हुआ क्या, दिस सील से हमें पता चलता है कि जब आफ्टर बीइंग डिफीटेड तोरमाना वाज सर्विंग एज अ वैसल किंग, मतलब प्रकाश धर्मन एंड यशोधर्मन अलाउड हिम टू कंटिन्यू टू रूल अंडर देम। व्हाई? क्योंकि ये जो सील है इसका रिवर्स में इंप्रेशन है और इसमें है लिखा हुआ है श्री यशोधर्मन, ब्राह्मी में तोरमान, और यहाँ विष्णु का चक्र है हाथ के साथ, ये फायर ऑल्टर अग्निकुंड है और ये इनका हुना का तामगा था। तो इस जॉइंट सील में यशोधर्मन का नाम है, तोरमान का नाम है और उनका होना तामगा भी है। तो हमें इससे मालूम चलता है कि ये स्टोरी जो थी तोरमान की, ये खत्म नहीं हुई। ये ही वाज अलाउड आफ्टर ही वाज डिफीटेड टू कीप हिज किंगडम एंड कंटिन्यू टू रूल। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो हमारी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारी हिस्ट्री बुक्स में ना रिसर्च हुई थी 1950 1960, डॉक्टर आलतेकर ने करी, ठीक है। अब डॉक्टर आलतेकर ने जो 1957 में किताब गुप्ता सिक्कों पर करी, अब ये 1957 के बाद में किसी ने कोई बड़ी किताब लिखी नहीं, छोटे छोटे सिलेक्शन करके किताबें लिखी हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस एंटायर डायनेस्टी, मतलब पूरे डायनेस्टी के 243 इयर्स की डायनेस्टी के सभी सिक्कों को इकट्ठा करके उसको स्टडी करा है। और स्टडी की जो देखिए, इसमें ना गोल्ड के कॉइन्स में ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। हाँ, अब ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में हम पढ़ के ये पता चल सकता है कि इसमें क्या लिखा है। ये कॉइन पता है किसका है? दिस इज द सेम कॉइन, सेम किंग तोरमान, पर जब उसने गुप्ता सेंट्रल इंडिया को कैप्चर कर लिया, he gave himself a name of the Gupta dynasty and called himself प्रकाशादित्य। अच्छा, प्रकाशादित्य, राइट। अब हम आपको एक और कॉइन दिखलाएंगे कि आपको बस मजा आ जाएगा। ये कॉइन है स्कंद गुप्ता का, राजा रानी कॉइन होता है गुप्ता कॉइन्स में। अब ये राजा रानी नहीं है, राजा रानी इनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने इश्यू करा था, मतलब अपनी वाइफ के साथ, अपने क्वीन के साथ। ये जूनागढ़ में जो इंस्क्रिप्शन है, रॉक इंस्क्रिप्शन 455, 60, 56, 57 एडी की, उसमें स्कंद गुप्ता ने लिखा है कि आई हैव वन बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ लक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी के हाथ से हमको ब्लेसिंग से, आई हैव वन दिस स्ट्रगल। ही इज शोइंग लक्ष्मी हियर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम, नॉट हिज वाइफ, बिकॉज यहां पर देखिए, अगर आप देखें, ही इज शोन एज अ ओल्डर मैन, स्कंद गुप्ता, महाराजा धीराजा स्कंद गुप्ता। गरुड़ है यहाँ बीच में, वो वैष्णव का रॉयल सिंबल था, बट इसके साथ इज लक्ष्मी। हाउ डू वी नो लक्ष्मी? बिकॉज इन हर हैंड शी इज होल्डिंग अ कमल लोटस, राइट। अब इस बुक में आपको एक और चीज दिखलाता हूं जो आपको बड़ा मजा आएगा। आप जब एयरपोर्ट में जाते हैं, एयरपोर्ट में आप टर्मिनल 3 में कॉइन्स देखते हैं वॉल पर,
ब्रॉन्ज के, वन ऑफ द कॉइन्स इज दिस वन, एंड वो ब्रॉन्ज में बनाया है, बट ये गोल्ड का ओरिजिनल कॉइन है। ये गोल्ड में दिस इज महाराजा धीराजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, श्री विक्रमादित्य ब्राह्मी में लिखा है। ये विक्रमादित्य का कॉइन है और ये इसका फ्रंट साइड जो है वो एयरपोर्ट की वॉल पे लगा हुआ है। लास्ट मैं आपको बताता हूं, मैं आपको जो किंग एंड लक्ष्मी के बारे में बता रहा था ना, ये किंग एंड क्वीन टाइप है उसी का, बट उन्होंने स्कंदगुप्त ने वाइफ नहीं लगाई, लक्ष्मी लगाई। अब ये देखिए, ये हमारी किताब का कवर का कॉइन है। अब ये है राजा समुद्रगुप्ता। अब इस कॉइन पे लिखा है राजा समुद्रगुप्ता, ये नहीं लिखा है महाराजा धीराजा। ही वॉज अ यंग किंग व्हेन ही बिकेम ही टुक पावर। जब वो चंद्रगुप्त वन ने इनको पहले पावर में किंग बनाया, वो ही वॉज नॉट अ महाराजा धीराजा क्योंकि उनकी टेरिटरी छोटी थी। व्हेन ही एक्सपैंडेड इट ही बिकेम महाराजा धीराजा। अब इसमें क्या दिखा रहे हैं, ही इज किलिंग अ टाइगर। अब टाइगर कहां होता है, it is in the Ganges area. So it is portraying that Samudragupta is capturing the areas of the Ganges. How do we know this? Because in the back of the coin, we have Ganga standing on a makra. And she is holding a kamal, lotus flower. And ye dekho, ye kya hai? Old style of Trishul. Even though they were Vaishnavas, you still have a Chandra Dhavaj right there. Acha, ये अश्वमेधा सीन है, बिकॉज अलाहाबाद प्रशिष्टि में लिखा है कि उन्होंने काफी अनेक अश्वमेधा करी थी। हाँ, ये ही इज शोइंग ही इज अ लिरिस्ट टाइप, मतलब ये वीणा चला रहे, वीणा ओल्डर टाइम में जब पूरा लैंड कॉन्कर कर लिया था उस टाइम ही इज डूइंग द वीणा, राइट। ही इज पीस, ही इज एंजॉयिंग द आर्ट्स, ठीक है। एंड दिस इज द फर्स्ट कॉइन एवर स्ट्रक आफ्टर द कुषाण डायनेस्टी बाय द फर्स्ट गुप्ता किंग। इनका नाम चंद्रगुप्त द फर्स्ट, प्रथम। ये अब देखो क्या है, इन्होंने खड़े हैं अग्नि कुंड में, इज पुटिंग द आहुति। यहां पर वो गरुड़ है, हाथ में राजडंडा है। आपने मोदी जी की पिक्चर देखी थी ना, जहां वो न्यू पार्लियामेंट में। दिस इज फ्रॉम अबाउट 320 AD एंड ही इज शोइंग अ राजडंडा इन हिज हैंड, उस टाइम का गोल्ड में। एंड इसके पीछे क्या है, राजा रानी है। दिस इज एक्चुअली द वायकुंठ सीन, दिस इज विष्णु विद लक्ष्मी, बट इसमें लिखा है श्री विक्रमा। सो ही वॉज द ओरिजिनल श्री विक्रमादित्य। अब क्या होता है, विक्रमादित्य, हर एक किंग यूज्ड टू टेक द नेम विक्रमादित्य, नहीं समझे। एक किंग का नाम नहीं था विक्रमादित्य, वो सभी लोग ने विक्रमादित्य नाम ले रखा था। तो हमारी किताब का नाम है ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक लास्ट चीज दिखलाता हूं यहां, अगर हाँ, ये क्या है, आप इधर देखिए, ये चंद्रगुप्त टू का आर्चर टाइप कहते हैं इसमें, जो इसमें इनके पास बो है, हाथ में एरो है, यहाँ गरुड़ है। ये है महाराजा धीराजा चंद्रगुप्त। अब इसके पीछे क्या है, लक्ष्मी। हमारी बुक में फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम एबल टू शो कि ये लक्ष्मी का जो डिजाइन है, लक्ष्मी सीटेड ऑन अ लोटस होल्डिंग अ लोटस फ्लावर, दिस ओनली डेवलप्ड अराउंड 380 AD। मतलब 380 AD से पहले लक्ष्मी was not shown always seated on a flower. Sometimes she was on a throne, sometimes she was standing, but not on a lotus. ये सिर्फ हुआ 380 के बाद में, क्योंकि गुप्ता एज में उन्होंने पहली बार जो भी देवा और देविया और देवताओं का जो डिजाइन था वो फिक्स उस टाइम हुआ। ये शिल्प शास्त्र जो थे वो उस टाइम कोडिफाई हुए। तो दिस इज ओनली दैट टाइम दैट लक्ष्मी जी का डिजाइन फाइनल हुआ। और ये दिस इज व्हाई द गुप्ता डायनेस्टी इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट वाज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, नॉट बिकॉज इनके गोल्ड कॉइन्स थे, बट हमारे उस टाइम में पुराणास लिखे गए थे, जो वैदिक शास्त्र थे उनको कोडिफाई करा हुआ था। तो ये आर्ट्स, लिटरेचर, ये सब बहुत ही प्रोमिनेंस से इट वाज जस्ट इट फ्लरिश्ड। मतलब हमारा जो भारत का इतिहास
उस टाइम का है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिव ईयर्स फॉर हिंदुइज्म एंड फॉर एंशिएंट भारत। आपने बताया कि जो हिस्ट्री है वो काफी ज्यादा इस पे मतलब गैप आ गया था, लेकिन आपने जो है अरे 40 गैप साल क्या, का लोगों को research मालूम ही किया। नहीं था। तो अगर कोई स्टडी करे तो फिर मालूम चले ना। हमें तो 40 साल से मैंने स्टडी करा है। इस किताब में जो हर एक चैप्टर है, इसमें वन चैप्टर कुड बी अ सेपरेट बुक। मैंने पूरी एक साथ करी। अब आपको एक पिक्चर सिमरन जी देंगी मोदी जी की। जब मोदी जी ने मुझे अपने घर बुलाया, उन्होंने मुझसे यही पूछा कि संजीव जी आप बाहर बैठे ऐसे ये किताब कैसे लिख सके। और फिर मैंने उनको एक्सप्लेन करा कि भाई ये 40 साल की रिसर्च है, बहुत टाइम लगा, बट इट नीडेड टू बी डन। और ये हमारा कर्तव्य है भारतवासी होके, कहीं भी हम यूएस में बेस्ड हैं, बट स्टिल हमको ये करना है भारत के लिए। कौन करेगा, राइट? भारत का इतिहास को हमको ही तो ठीक करना है, और बिल्कुल फैक्ट्स बेस्ड। ये नहीं कि हम अब स्टोरी बना रहे हैं, मिथोलॉजी बना रहे हैं, नहीं, दिस इज ऑल फैक्ट बेस्ड। ये सब रिसर्च से, इंस्क्रिप्शन से, जो ताम्रपत्र कॉपर प्लेट्स होती हैं, कॉइन्स हैं, गोल्ड कॉइन्स हैं, सिल्वर कॉइन्स हैं, इनको पढ़ के वो स्टडी करके। उसके लिए भी आप इंडिया आए थे या मैं इंडिया तो हर एक हफ्ते आता हूँ। इतना पैसा अपना खर्च करा, स्विट्जरलैंड गया, लंदन गया, सिंगापुर गया, फ्रांस गया, सब म्यूजियम्स को खुलवाया। यहाँ पर भरत कला भवन का म्यूजियम 1957 से खुला नहीं था, वॉल्ट्स उनको खुलवाए। मानी जी जो हैं डीजी नेशनल म्यूजियम के, उन्होंने मुझे Imagine a time when India stood as the world's beacon of knowledge, prosperity and culture. A time known as the golden age of India, Bharat ka Swarna Yug. This was the era of the Gupta Empire, a civilization that shaped the very foundation of Indian history, art and thought. As we step into the streets of Patliputra, the hearts of the Gupta Empire, we are surrounded by the hum of intellectual debates, the creation of breathtaking art, and the exchange of golden coins. Great writers like Kalidasa, astrologer and mathematician Aryabhatta, and Varahmihira left their marks on literature, astronomy and mathematics. The empire's patronage of learning gave birth to groundbreaking discoveries in medicine like Charak Sanhita and Sushruta Sanhita, which remain influential to this day. The revered University of Nalanda stood as a testament to the empire's commitment to knowledge, attracting seekers of truth from across the known world. Gupta artistry weaves a tapestry of divine beauty. As skilled craftsmen bring the gods to life in stone and color. Every curve and line tells a story of devotion, passion and creativity. But perhaps the most enduring legacy of the Gupta era lies in its coinage. Each coin is a snapshot of history, with clues hidden within the design and ancient Brahmi script. And behind the artistic scenes we find the Game of Thrones of India, telling the story of greatest Gupta kings who ruled with wisdom, strength and devotion. The mighty Samudragupta, who expanded the empire from sea to sea and is called the Napoleon of India. Chandragupta II, also known as Vikramaditya, and Kumar Gupta, who gave stability and patronized scholars.
Under the patronage of these powerful and devout kings, Hinduism found its foothold and came of age. The highly acclaimed book, Treasures of the Gupta Empire, takes you on a journey to understand the history of that era that shaped India and eventually set the stage for Bharat to become the Vishwaguru to the ancient world. All right, did you guys like that? It shows a date of Jeet Gupta era 149, which is AD 48 in Brahmi. And this date translates to, in Shaka era, 398 AD. So the assault, conquest of the Western Kshatrips started around that 398 AD. We have proof. That is how we can actually. We have similar dates on silver coins. This is Chandragupta II riding into battle. He's holding a bow, right? This is Chandragupta II with his queen. This is a king and queen type. There, and in the back of the head, you can see the date. So we can date these coins and we can know when was the siege of Gujarat and Western Kshatriya. Now, this is very interesting. Kumar Gupta, in silver coins of Kumar Gupta I, we see dates as early as 409 and 407 AD. And the last riding into battle with the mighty elephants. You know, our elephants, Roman designs. Look at the artistry and the entire the coin obverse is a big bronze plaque on the wall of that airport. This is Chandragupta II standing in a battle with a chhatra above him, a small person holding a chhatra over him, surveying the battle scene. And on the back, right, we see Goddess Lakshmi, but she is had access to just a small amount of data, but that did not stop them from floating conclusions that today we can just see are just plain wrong. Theories that are now in our history books but must be corrected. Now I'm going to show you a coin. By the way, this is the coin, this is Kachagupta, but he is not a Gupta king because there is no Garud on it. Garud was the royal emblem of the Gupta kings. In fact, when in fact it was Tormana. How do we know that? So look at the elongated head. That was the Sasanian style of, elongated heads. And their portraiture of a horseman killing a lion. It's a very royal seal with two names on it. Yashodharma, Alkan Hans Tanga. So these are very important. When great scholars like Chabra, P.L. Gupta, Avtekar, Professor Tham, and she's facing the king. Now we have Junagadh rock inscription, which actually says that he's taking the power as the king, Skandagupta says. गुप्ता एम्पायर पे मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लिखा गया है या सबसे ज़्यादा काम हुआ है, लेकिन आज भी हर नया काम अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप गुप्ता कॉइन में जितना डीप जाएंगे, बिकॉज इट्स अ गुप्ता कॉइन और जो गुप्त काल है जिसको हम गुप्ता डायनेस्टी कहते हैं, वो गुप्त काल अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस समय जो भारत में जिस तरह की कला का विकास हुआ, जिस तरह से स्थापत्य का विकास हुआ, जिस तरह से संगीत, म्यूजिक, आर्ट, आर्किटेक्चर, सबका जो जिस तरह से विकास हुआ है, उसका एक रिफ्लेक्शन दिखाई देता है कॉइन पे भी। कॉइन पे भी अगर आप देखेंगे तो उसकी जो एनाटोमी है, उसमें जो सब्जेक्ट्स जैसे उन्होंने चूज किए हैं, और चाहे लक्ष्मी की बात हो, चाहे किंग एंड क्वीन की बात हो, या मैट्रिमोनियल अलायंस की बात हो, या उनके राजदंड और राज्य चिन्ह की बात हो, या उस समय की सामयिक चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों का रिफ्लेक्शन है कॉइन्स। सिर्फ एक ट्रांजैक्शन ऑफ मनी नहीं है, बल्कि समसामयिक परिस्थितियों में जिस तरह का परिवेश था, जिस तरह का आर्ट था, जिस तरह
जैसे जिक्र किया कि किस समय युद्ध हो रहा है या अगर कोई राजाओं का वर्णन नहीं मिल रहा है किसी तो वो सारे गैप की जो फीलिंग है वो कॉइन कर देता है कई बार। तो कॉइन कई मायनों में इम्पॉर्टेंट है कि जब हम डेट करते हैं किसी भी साइट का एक्सकवेट करते हैं या खुदाई करते हैं और अगर हमें कॉइन मिलता है तो एक सर्टेन डेट उस पर्टिकुलर लेयर का और उससे रिलेटेड और चीज़ों को हम डेट कर पाते हैं। इसलिए कॉइन इंडियन हिस्ट्री के लिए, इंडियन आर्कियोलॉजी के लिए, इंडियन आर्ट और अदर उसके लिए कॉइन बहुत इम्पोर्टेंट है कॉइन की स्टडी। और ये जो नई बुक इन्होंने लिखी है, इन्होंने बहुत वर्सटाइल वे में चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया है। पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि उन्होंने जो क्रोनोलॉजी की बात की है, उन्होंने जो मेट्रोलॉजी की बात की है, जो मेटल एनालिसिस किया है, अभी न्यू टेक्निक्स हमारे पास हैंडल एक्सआरएफ उपलब्ध है, तो आसानी से उन चीज़ों को का मेट्रोलॉजिक एनालिसिस किया जा सकता है। और मेटल और वेट स्टैंडर्ड कैसे चेंज हो रहा है, अर्ली से लेके और लेट तक कैसे मेटल स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है। साथ ही चाहे गोल्ड हो या गोल्ड के अलावा सिल्वर है या फ्यू एग्जांपल हैं अगर कॉपर के, तो उसका क्या रिलेवेंस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए हर बुक अपने आप में एक ब्रेक थ्रू है और ये बुक तो पर्टिकुलरली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे नई चीज़ें इसमें इनकॉर्पोरेट और बहुत नोन जो चीज़ें नहीं थी वो इसमें आई हैं। तो इंडियन हिस्ट्री और उसकी क्रोनोलॉजी को समझने के लिए ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। और चूंकि इस बुक का दोनों पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी है जो हिस्ट्री और उसको डील कर रहा है और उसके साथ साथ कैटलॉगिंग भी है। तो कैटलॉग का इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने तरह से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी उसके फोटोग्राफ, उसका वेट स्टैंडर्ड, उसके साइज, उसके डेट्स, उसका प्रोवेनेंस, उसका फाइंडिंग प्लेस, वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो कैटलॉग इसलिए हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अर्ली उसमें अल्टेकर ने या एलन का कैटलॉग है, वो हम सारे रिसर्चर्स उसको रेफर करते हैं उस कैटलॉग को। तो कैटलॉग एक पार्ट जो कैटलॉग पार्ट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है जिसमें उसका इंटरप्रिटेशन को रखा गया है, इसलिए ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है रिसर्चर्स के लिए और इसके लिए। तो निश्चित रूप से ये संजीव कुमार जी का जो ये काम है वो रिसर्चर्स के लिए बहुत यूज़फुल है और मुझे लगता है कि सारे म्यूजियम्स में या जो भी संस्थान है यूनिवर्सिटी में के लिए ये बुक बहुत यूज़फुल होगा। देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारे यहाँ जो लाइब्रेरीज हैं वो वाइडली लोग आते हैं वहाँ कंसल्ट करने के लिए, देखने के लिए और स्टडी करने के लिए। तो ऐसी कोई भी बुक आती है तो वो हम सबों के लिए यूज़फुल होता है क्योंकि हम लोग जो हम एक्सकवेशन करते हैं या फिर हम अपने हेरिटेज को देखते हैं या हमेशा जो चाहे स्कल्पचर हो या टेराकोटास हो, उसका जो आर्ट फॉर्म्स हैं या हमारे यहाँ जो कॉइन कलेक्शंस हैं उन कॉइन कलेक्शंस का इंटरप्रिटेशन और री इंटरप्रिटेशन के लिए ये बुक बहुत यूज़फुल होगा। और निश्चित रूप से चाहे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो या अदर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो या यूनिवर्सिटी हो या फिर म्यूजियम्स हो, ये सब के लिए यूज़फुल है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.